Hello everyone, I welcome you all once again to my education channel, Prabhavi Education Hub. And in this video, we are going to learn about chapter 28 of Indian Polity, the series which I have started a few days back, and we are already at the chapter 28. So hope we will be covering very soon as possible. I'm trying my level best. And actually I'm recording this video again because of the sound issue. I recorded and I found later on that it was having no sound on the video. So one of a good friend actually informed me about the sound, that the sound is not available. Anyway, if you are new to the channel, please subscribe and bell icon also press कर लेना. तो चलो पॉइंट वाइज पढ़ते हैं हम लोग. एंड इससे पहले बता दो, देयर इज इकोनॉमी सीरीज, इंडियन इकोनॉमी बेस्ड है. आई हैव टेकन रेफरेंस फ्रॉम रमेश सिंह फॉर दिस सीरीज and the series is of total 57 hours, so you can definitely get a lot of benefit out of it. And the series is so designed, I have meticulously made it. I have put all my effort into this series so that the notes are very crisp. So there is a PDF available as a note. You have to take that because revision is again very important as far as any examination is concerned. Let it be UPSC, civil services exam, any exam. Okay, so let's begin. Our style of learning is point wise, तो point wise ही बताऊंगा मैं आपको. Again, this concept of judicial activism, where judiciary actively participate in the work of other two organs such as executive and legislature. Legislature और executive मैंने बताया आपको organs होती हैं. Judiciary भी explain किया है. ठीक है, तो स्टेट के किसी भी स्टेट मतलब यहाँ पे यूपी, बिहार, झारखंड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं. स्टेट मतलब ओवरऑल आई एम टॉकिंग अबाउट कंट्री इन द पॉलिटी सेंस. तो पॉलिटी के सेंस में तीन ऑर्गन्स होते हैं, जुडिशरी, एक्सिक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव. तो जब जुडिशरी अपनी दायरा, अपने लिमिट्स को क्रॉस करके दूसरी ऑर्गन्स एक्सिक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर में एक्टिवली अपना रोल प्ले करने लगे, उस केस को, उस कंडीशन को कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म. मतलब जुडिशरी इतनी एक्टिव हो जाती है कि वो एक्टिविज्म हो जाता है एंड दूसरे के वर्क में वो इंटरफेयर करने लगती है. जो अदर टू ऑर्गन्स हैं, एक्सिक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, विच आर इंडिपेंडेंट एज फार एज their work is concerned. However, they are in between, they are interdependent, but they are independent of judiciary. ठीक है, definitely judiciary can interfere बट नॉट इन द नॉर्मल वर्क. जैसे कि इनका काम क्या है, लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना. ठीक है, कानून बनाता है. एक्सिक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट कराता है. एक्सिक्यूटिव भी समटाइम कानून बना सकता है अगर लेजिस्लेचर नॉट अवेलेबल है, पार्लियामेंट इन द सेंस में. तो देखिए, अगर जुडिशियरी के काम है कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करना, लॉ को देखना, चेक करना, इसके वेराइड फंक्शन है. बट ये फंक्शन नहीं है कि एक्टिवली एक्सिक्यूटिव और लेजिस्लेचर का काम करने लगे. एनीवे, the concept again was originated in USA में ही originate हुआ है and it was coined in 1947 by Arthur Schlesinger, whatever you sounds like, Arthur Schlesinger Jr. He is the personality. He is basically expert in judicial system, judiciary expert. Arthur Schlesinger Jr. was basically honored to coin this concept, judicial activism. Anyway, now it is very important कि आप मीनिंग समझो. क्या है मीनिंग जुडिशियल एक्टिविज्म का? इसके बिना कोई मतलब नहीं है. तो बड़े ही अच्छे से मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया एक्सिक्यूटिव और लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी के बारे में. कब जुडिशियल एक्टिविज्म हो जाता है वो मैंने बताया. कब होता है? तो प्रोएक्टिव रोल जब प्ले करने लगती है जुडिशरी to force the other two organs, which I told you that executive and legislature, ये दो organ को force करे judiciary to discharge their constitutional duties. That is called judicial activism and it is somehow antithesis of judicial restraint. अब भैया एक और टर्म आ गया यहाँ पे, judicial restraint. ये क्या है? बड़े ही सिंपल शब्दों में बताता हूं जुडिशियल रिस्ट्रेंट क्या है. इट इज जस्ट अपोजिट टू जुडिशियल एक्टिविज्म. इन दिस कॉन्सेप्ट जनरली
जो ये कॉन्सेप्ट है, वो बेसिस है इसका, जो है, जो इसका आधार है, वो ये है कि जुडिशियरी अपना ही काम करेगी और एक बहुत ही डेलिकेट सेपरेशन बना के रखेगी बाकी दो ऑर्गन से. इट इज रियली इंपॉर्टेंट. ओके. एंड इसी कॉन्सेप्ट पे जुडिशियल रिस्ट्रेंट काम करता है. सो you can say that judicial restraint is just antithesis of judicial activism. Okay, fine. Next point. Now, judicial activism can be defined as the process of law making by judges. Definitely. होता क्या है कि जुडिशियल रिव्यू, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, कहीं ना कहीं जुडिशियल रिव्यू रहता है. जब जुडिशियल एक्टिविज्म होता है तो जुडिशियल रिव्यू उसमें पाया जाता है. ठीक है. बट बोथ आर डिफरेंट टर्म्स. एनीवे, मैं बता रहा हूँ कि जुडिशियल रिव्यू में क्या होता है, कोर्ट बेसिकली हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लॉ को चेक करती है कि वेदर इट इज इन कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट. तो जब इसको लगता है कि इट इज अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अगेंस्ट है कोई लॉ जो कि इधर इट वाज मेड बाय पार्लियामेंट या फिर स्टेट के लेजिस्लेचर ने बनाया हो, तो इसको ये नल एंड वाइड कर सकती है. नल एंड वाइड कर सकती है मतलब कि इसको रद्द किया जा सकता है, ये लागू नहीं हो सकता जब जुडिशरी ऐसे चेक कर. दिस इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू. अब यही पे बात सीमित नहीं रहती है. अब यहाँ से जुडिशियल एक्टिविज्म शुरू हो जाता है. तो फिर क्या करती है जुडिशरी? ठीक है, इस लॉ को वो कहती है कि ठीक है, ये तो एक तो सही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है, और इसमें कुछ अमेंडमेंट करो आप लोग. तो अगेन इट डायरेक्ट्स द कोर्ट्स कि भाई आप इसमें ना में हमारे हिसाब से कोर्ट जजेस कहते हैं कि ये होना चाहिए, विच इज सोनली द जॉब ऑफ पार्लियामेंट्रियन. लॉ मेकिंग किसका काम है? पार्लियामेंट्रियन का काम है. तो क्या जुडिशरी इंटरफेयर करके अपना पॉइंट जजेस अपना रख देते हैं? तो मान लेना चाहिए. दिस फॉर्म इज एक्चुअली इज क्रिटिसाइज्ड बाय लॉट ऑफ पीपल. जुडिशियल एक्टिविज्म को कई एक्सपर्ट्स ने क्रिटिसाइज किया है. एंड इन फैक्ट सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि देयर मस्ट बी सेपरेशन. इस पे कई सारे थ्योरी दी है सुप्रीम कोर्ट ने. एनीवे, वी विल डिस्कस ऑल दोस थिंग. Next point is judicial activism is a procedure to evolve new principles, concepts, maxims, formulae and relief to do justice or to expand standing litigant. अब देखो होता क्या है, जुडिशरी क्या करती है ना, ये सारे काम जुडिशियल एक्टिविज्म करती है सोसाइटल बेनिफिट के लिए, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए. सोसाइटी में स्पेशली दोज हु आर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, या फिर दोज हु आर somehow those who has not access to the judiciary, ये भी कह सकते हैं आप. वैसे लोगों को मौका देती है बाय द लिटिगेशन फाइलिंग. ठीक है, लिटिगेंट्स बना देती है उनको. जैसे कि एक आपने बड़ा ही फेमस टर्म सुना होगा, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. ठीक है, ये पैदा हुआ है जुडिशियल एक्टिविज्म से. जुडिशियल एक्टिविज्म के द्वारा ही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन टर्म एग्जिस्टेंस में आया है. तो ये डेफिनेटली नए फॉर्मूलाज, नए प्रिंसिपल्स, नई मैक्सिम्स, नई रिलीफ्स वगैरह की एस्टैब्लिशमेंट या फिर उनको एक्सपैंड करता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट हियर इज जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म. क्या दोनों एक ही शब्द है? 20th सेंचुरी में ऐसा देखा गया है, ऐसा ऑब्जर्वेशन रहा है कि कई सारे एक्सपर्ट्स जुडिशियल रिव्यू को ही जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं या फिर जुडिशियल एक्टिविज्म को जुडिशियल रिव्यू कहते हैं. हाउएवर ये बात सच है कि दे आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, बट देयर इज ए डिफरेंस, देयर इज ए वेरी फाइन डिफरेंस. उस डिफरेंस को मैं बताता हूँ आपको पॉइंट में. ठीक है, द फॉर्मर, आई एम टॉकिंग अबाउट द जुडिशियल रिव्यू, द फॉर्मर judicial review, that form of letter in which judges participate in law making. तो देखिए कहीं ना कहीं सिमिलर तो लगते हैं ये लोग. जुडिशियल रिव्यू जो जुडिशियल एक्टिविज्म है उसमें अंतर ये है कि स्टार्ट तो होता है जुडिशियल रिव्यू से ही. कोई भी लॉ आए या फिर कोई भी लेजिस्लेशन, जो भी एक्सिक्यूटिव ऑर्डर वगैरह जो भी हो,
वहां पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करने लगती है एंड उसी के बाद लॉ मेकिंग प्रोसेस में शामिल हो जाती है, पार्टिसिपेट करने लगती है। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि बताने लगती है लेजिस्लेटर्स को कि भाई ये होना चाहिए, हमारे हिसाब से ये करो ये करो। डायरेक्ट करती है, ऑर्डर्स देती है जुडिशरी, जो कि ठीक नहीं है मेरे हिसाब से भी, बिकॉज यार एवरी इंस्टीट्यूशन हैज देयर ओन राइट। हाउएवर बट ऐसे एक्सट्रीमली मैं भी नहीं बोल सकता कि ये बिल्कुल ही ठीक नहीं है, बिकॉज किसी भी मुद्दे का दो भाग होता है, प्रॉस एंड कॉन। ठीक है, प्रॉस एंड कॉन्स, तो इसमें प्रॉस भी है, इसमें कॉन्स भी है। एनीवे जानेंगे इनके। नेक्स्ट, judicial activism stresses the importance of judicial review and powerful judiciary in the protection and promotion of certain core rights। तो core rights बेसिकली ऐसे राइट्स हैं जो कि बिल्कुल सेंटर में बैठे हैं, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। फंडामेंटल राइट, जैसे कि फंडामेंटल राइट इज कोर राइट। तो जब भी कोर राइट किसी का या फिर ओवरऑल कंट्री में लोगों का बार बार वायलेट हो रहा है, तो जुडिशियल एक्टिविज्म करती है जुडिशरी। एंड जुडिशियल एक्टिविज्म स्ट्रेस करता है इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू के। जुडिशियल रिव्यू कब होता है? जुडिशियल रिव्यू होता है कोई लॉ बना और वो किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, जुडिशियल एक्टिविज्म होगा। और इस एक्टिविज्म की वजह से जुडिशियल रिव्यू होगा, और जुडिशियल रिव्यू के वजह से जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशरी डेफिनेटली जुडिशियल एक्टिविज्म करेगी। तो कहीं ना कहीं आप एक पैटर्न देखोगे कि जुडिशियल एक्टिविज्म स्ट्रेसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड पावरफुल जुडिशरी इन द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ सर्टेन कोर राइट्स। नेक्स्ट पॉइंट, basically it is expanded concept of locus standi in connection with the PIL by judicial interpretation from time to time। तो PIL क्या, मैंने अभी जस्ट बताया था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये बेसिकली एक टर्म, ऐसा टर्म है जो अगेन यूएसए से ओरिजिनेटेड है। ठीक है, एनीवे इसको भी पढ़ लेंगे बाद में, अगला चैप्टर ही PIL पे है। तो लोकस स्टैंडी यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा होगा, एक्सपेंडेड कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडी। लोकस स्टैंडी का मतलब ये होता है कि हु कैन अप्रोच द कोर्ट, हु इज ऑथराइज्ड टू अप्रोच द कोर्ट्स। ठीक है, तो लोकस स्टैंडी पहले क्या था, कम लोगों के पास था। दोज हु आर इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग, एजुकेशनली स्ट्रॉन्ग could proceed to the court and do justice for them। They basically file a lot of litigations etc। but what about those जो गरीब थे, जिनके पास एजुकेशन नहीं है, जिनके पास वकील हायर करने का उतना पैसा नहीं है, वैसे लोगों को PIL ने बहुत ही मौका दिया है, उनको ऑथराइज कर दिया है। एनीबडी कैन फाइल PIL। आप, मैं, कोई भी जाके कोर्ट में PIL डाल सकता है, बट इट शुड बी ऑन द पब्लिक मैटर। पब्लिक मैटर पे, ऐसा नहीं कि मैं जाके पर्सनल मैटर पे PIL नहीं डलता है। ठीक है, पब्लिक मैटर पे डलता है हमेशा। तो लोकस स्टैंडी जो है, हु विल बी गोइंग फॉर कोर्ट, कौन कोर्ट में फाइल कर सकता है PIL। लोकस स्टैंडी जो है वो बढ़ गया है PIL की वजह से। इसके वजह से जुडिशियरी का इंटरप्रिटेशन भी बढ़ गया है। टाइम टू टाइम नए नए PIL आते रहते हैं और इंटरप्रिटेशन उसके हिसाब से जुडिशरी निकालती रहती है। एनीवे, नेक्स्ट इज जस्टिफिकेशन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। अब देखिए, जुडिशियल एक्टिविज्म को एक्सपर्ट्स ने, लोगों ने, जैसे कि एक्सपर्ट लाइक डॉक्टर BL वधेरा, ऐसे लोगों ने जस्टिफाई भी किया है। यही नहीं, और भी कुछ लोग हैं, उनका भी मैं आपको जस्टिफिकेशन दिखाऊंगा इस स्लाइड में। तो क्या ग्राउंड है जिस पे इन्होंने जस्टिफाई किया है कि भाई जुडिशियल एक्टिविज्म इज गुड, इट इज राइट थिंग। देख लेते हैं। फर्स्ट जो इनका जस्टिफिकेशन है, ये इनका मानना है कि जब भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जब भी फेल हो जाती है अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करने में, मतलब उनकी ड्यूटी जो भी है, जैसे लॉ बनाना, ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन, सब कुछ उनकी ड्यूटी है। अगर ये दो ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, फेल हो जाती है अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करने में, तो आप कह सकते हो कि इट इज लाइक नियर कोलैप्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। So first point here, near collapse of the responsible government when the
लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव फेल टू डिस्चार्ज देयर ड्यूटी, उस केस में अगर कोर्ट एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, जुडिशियल एक्टिविज्म करती है, देन इट इज जस्टिफाइड एज पर द व्यू ऑफ डॉक्टर BL बदेरा। नेक्स्ट, अब देखिए जुडिशियल इंथुजियाज्म, दैट इज द जज लाइक टू पार्टिसिपेट इन सोशल रिफॉर्म। जजेस भी तो इंसानी है, जजेस भी इंसानी है, and they can also think about the social reforms, and they have a very good platform also. However, their role is not to do the social reform and all. They should limit themselves to the, you know, scrutiny, you can tell. जैसे कि कोई लॉ आया उसको स्क्रूटनाइज करना है, वहां तक सीमित रखना चाहिए। लेकिन जुडिशियल इंथुजियाज्म आ जाता है उनके अंदर एक सोशल रिफॉर्म को लेकर एक जागरूकता, एक जोश, एक जुनून उनके अंदर रहती है। ये भी जस्टिफाई करता है कि ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म सोशल रिफॉर्म के लिए कर रहा है, जुडिशियल सिस्टम इंथुजियाज्म है, जज लाइक करने हैं पार्टिसिपेट करना सोशल रिफॉर्म में, तो ठीक है, इट इज जस्टिफाइड। नेक्स्ट इज legislative vacuum, that is there may be certain areas which have not been legislated upon। इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली देयर आर मेनी लॉज, लगभग सारे मुद्दे कवर हो जाते हैं, बट देयर आर डायनेमिक थिंग्स आल्सो, एंड देयर आर सम एरियाज व्हिच आर स्टिल लेजिस्लेटिवली वैकम, मतलब वैकम है, वहां पे लॉ नहीं है, कई सारी ऐसी एरियाज है। वैसी एरियाज में अगर जुडिशरी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, जुडिशियल एक्टिविज्म करती है, तो देन एज पर द डॉक्टर BL बदेरा इट इज जस्टिफाइड। नेक्स्ट देखिए, एक और एक्सपर्ट है सुभाष कश्यप, इनका भी कुछ व्यू है, इनको भी जान लेते हैं। इन्होंने कहा कि देखिए जुडिशरी ओवरस्टेप कर सकती है, लेकिन कुछ इवेंचुअलिटीज के ऊपर जुडिशरी ओवरस्टेप कर सकती है, बट कुछ इवेंचुअलिटीज होनी चाहिए। वो क्या होना चाहिए इवेंचुअलिटीज? व्हेन द लेजिस्लेचर फेल्स टू डिस्चार्ज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहने का मतलब अगेन, लेजिस्लेचर इज a very important organ of state. It has all the right to make laws. It has a lot of work. Its function is varied. तो अगर ये अपना काम करने में फेल हो जाती है, तो अगर जुडिशरी उस केस में, उस इवेंट में, उस इवेंचुअलिटी में जुडिशरी पार्टिसिपेट करती है एज जुडिशियल एक्टिविज्म, देन इट इज ऑल ओके एज पर सुभाष कश्यप। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट, इन केस ऑफ हंग लेजिस्लेचर क्या होता है? जब नंबर्स ऐसे नहीं आते हैं देश में, जब इलेक्शन के बाद, कि कोई पर्टिकुलर पार्टी या फिर ग्रुप ऑफ पार्टी, जैसे कि कोलिशन करके पहले से, जैसे यूपीए है, यूपीए इज बेसिकली ग्रुप ऑफ पार्टीज। एक बड़ी पार्टी है कांग्रेस, उसमें देन उसमें छोटी छोटी पार्टियां और भी हैं, तो मिलके यूपीए बनता है। ऐसे एनडीए भी एक ग्रुप ऑफ पार्टी ही है, अलायंस है, उसमें भी जैसे बड़ी पार्टी बीजेपी है और बाकी छोटी छोटी पार्टियां हैं। अगर ऐसे केस में हंग असेंबली हो जाए, मान लीजिए इलेक्शन हुआ, हंग असेंबली मतलब कि कोई भी नंबर नहीं है लोगों के पास, या तो यूपीए के पास, बीजेपी के पास नंबर नहीं है कि सरकार बना ले, वो मैं बात कर रहा हूँ पार्लियामेंट की, या फिर हंग लेजिस्लेचर हो सकता है स्टेट में भी। तो उस केस में क्या होता है, सरकारें बन भी जाती है कई बार, तो किसी किसी के सपोर्ट पे बहुत ही लोचा, बहुत ही गलत सलत एंटी डेमोक्रेटिक काम होते हैं। जैसे कि किसी नेता को प्रलोभन दिया जाता है, उस नेता को अपने में मिलाने के लिए, उस पार्टी के लीडर को मिलाने के लिए, कि मैं ठीक है आपको मिनिस्ट्री दे दूंगा, जैसे चलो एनीवे, मतलब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ऐसा होता है जनरली, किसी को मिनिस्ट्री दी जाती है, किसी को कुछ दी जाती है। तो ऐसे वैसे में क्या होता है कि वो जो सरकार बनती है वो हमेशा जोड़ गांठ वाली सरकार होती है, जो बिल्कुल जुगाड़ पे चलती है। उस केस में जो सोसाइटी के लिए रिफॉर्म्स चाहिए, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग इनिशिएशन चाहिए, कोई स्ट्रॉन्ग लॉ चाहिए, वो नहीं बन पाते हैं, ऐसा ट्रेंड देखा गया है। उस केस में जुडिशियल एक्टिविज्म हो तो कोई बात नहीं, जुडिशरी एक्टिव रोल प्ले करे तो ठीक है, इट्स ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट, those in power may be afraid of taking honest and hard decisions for fear of losing power। तो डेफिनेटली मान लीजिए अब गवर्नमेंट है,
तो कई बार पॉपुलिस्ट एक्शन लेती है सरकार, कई बार माइनॉरिटी को भूल जाती है इस चक्कर में कि देखो 80% अगर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से अगर उसको वोट मिल जाए तो 20% के बारे में क्यों सोचना है, ऐसा भी सोचती है सरकार। ठीक है, उस केस में जुडिशियल एक्टिविज्म हो तो ठीक है। तो फिर क्योंकि ऐसा वो सोचती हैं, 80% के बारे में सोचती हैं, 20% के बारे में नहीं सोचती हैं, 20% कम्युनिटी इग्नोर हो जाती है, उस केस में जुडिशियल एक्टिविज्म हो तो इट्स ऑल जस्टिफाइड। नेक्स्ट पॉइंट, वेयर द सॉरी where the legislature and executive fail to protect the basic rights of citizens। तो basic rights, fundamental rights, basic rights जो भी है सिटीजन की, उसमें भी फेल हो जाए लेजिस्लेचर और एक्सिक्यूटिव, तो अगर ये की इवेंचुअलिटी बनती है कि जुडिशरी ओवरस्टेप कर सकती है इसमें। where the court of law is misused by a strong authoritarian parliamentary party government, तब भी उस केस में अगर ऐसी इवेंचुअलिटी आती है तो जुडिशरी ओवरस्टेप कर सकती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, अब जान लेते हैं एक्टिवेटर कौन कौन से लोग हैं। हु ऑल आर द एक्टिवेटर्स ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। एक्टिवेटर मतलब कि कौन एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, एक्टिवेटर ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। पहला ग्रुप है इसमें सिविल राइट्स एक्टिविस्ट का। ये लोग बेसिकली सिविल राइट्स के लिए पीआईएल वगैरह जुडिशियल एक्टिविज्म कराते हैं, कोर्ट में पहुंचते हैं ये लोग। पॉलिटिकल राइट्स, सिविल राइट्स वाले मैटर्स में डील किए जाते हैं। नेक्स्ट ग्रुप जो है वो है पीपल राइट्स एक्टिविस्ट। ये लोग बेसिकली फोकस करते हैं सोशल और इकोनॉमिक राइट्स। जब भी कोई स्ट्रगल हो रहा है विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेट रिप्रेशन ऑफ एनी मूवमेंट, मान लीजिए कोई मूवमेंट चल रहा है किसी भी, जैसे अन्ना आंदोलन हुआ था, वैसे उस केस में मान लीजिए स्टेट का रिप्रेशन, मतलब स्टेट चाह रही है कि इसको दबा दिया जाए, उस केस में सोशल और इकोनॉमिक राइट्स को बेसिकली हाईलाइट करते हैं और कोर्ट तक जाते हैं ये लोग। नेक्स्ट है कंज्यूमर राइट्स ग्रुप। तो देखिए कंज्यूमर्स के भी कुछ राइट्स होते हैं, जैसे राइट टू ऑप्शन, आपके पास ऑप्शन ऑफ आइटम्स होने चाहिए, राइट ऑफ चॉइस। तो कई कंज्यूमर के कई सारे राइट्स होते हैं। ओवरऑल मैं जनरल बता दूं, कंज्यूमर के राइट्स के लिए जो लोग लड़ते हैं उन ग्रुप को कहा जाता है कंज्यूमर राइट्स ग्रुप। देन बॉन्डेड लेबर ग्रुप, हमारे ये बेसिकली ऐसी ग्रुप होती है जो लड़ाई लड़ती रहती है फॉर द वेलफेयर ऑफ द लेबर्स, उनके वेजेस, मिनिमम वेज, इन सब चीजों के लिए पीआईएल वगैरह हाईलाइट करते रहते, पीआईएल फाइल करती है, कोर्ट वगैरह में जाते हैं ये लोग। ये खुद के लिए नहीं, ये लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म करवा रहे हैं ये। नेक्स्ट जो एक्टिवेटर ग्रुप है वो है सिटीजन्स फॉर इन्वायरमेंटल एक्शन। तो ये वैसा ग्रुप है, अगेन मेरा बच्चा चिल्ला रहा है, सॉरी फॉर दैट। सिटीजन्स फॉर इन्वायरमेंटल एक्शन, ये ऐसे लोग होते हैं, इसमें ऐसे लोग पार्टिसिपेट करते हैं जो गवर्नमेंट ने कोई लॉ लाया, कोई एक्ट बनाया जिस लॉ की वजह से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो सकता है, काफी सारे पेड़ कट जाए, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जिससे नदियां गंदी हो जाए, ऐसा कोई प्रोजेक्ट, इस टाइप के प्रोजेक्ट्स को हाईलाइट करते रहते हैं ये लोग, सिटीजन्स फॉर इन्वायरमेंटल एक्शन। नेक्स्ट ग्रुप देखते हैं, नेक्स्ट ग्रुप है सिटीजन्स ग्रुप्स अगेंस्ट लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। तो ये बहुत ही मुश्किल ग्रुप है, ये ग्रुप को बस बेसिकली कोई भी कंट्री नहीं लाइक करती है, कोई लोग भी इनफैक्ट इस ग्रुप को नहीं लाइक करते। क्यों भैया, देखो हमारी कंट्री में क्या है, स्टिल देयर आर 50%, मोर देन 50% ऑफ द पीपल स्टिल डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर फॉर देयर लिवलीहुड। ये बात सच है, ये बात फैक्ट है, इकोनॉमिक सर्वे में हाईलाइट होते रहती है। अब यार इतनी बड़ी आबादी जब एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रही है, और ये बेसिकली ये ऐसे लोग हैं सिटीजन्स ग्रुप अगेंस्ट लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये कहते हैं कि बड़े बड़े इरिगेशन प्रोजेक्ट से बहुत ही हानि होती है, सॉइल डिग्रेड होता है, सॉइल की वो जो ऊपरी परत है वो बह जाती है, नीचे से सैलिनेशन होता है, नमक जो है ऊपर आ जाता है। तो ये लोग ऐसा लड़ते रहते हैं लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए, जबकि हमारी कंट्री में इरिगेशन की फैसिलिटी अभी भी स्कैटर्ड है। देयर आर फ्यू स्टेट्स लाइक हरियाणा, पंजाब, जहाँ पे थोड़ी बहुत फैसिलिटीज है इरिगेशन की, एंड दे आर बेसिकली ओवर एक्सप्लॉइटिंग दैट फैसिलिटी एनीवे। बट देयर आर प्लेसेस सच एज मराठवाड़ा जहाँ पे पानी तो बिल्कुल है ही नहीं। देयर आर प्लेसेस लाइक बिहार, लाइक यूपी में भी, वेस्टर्न यूपी को छोड़ दे तो इरिगेशन की फैसिलिटी बहुत कम है। देन झारखंड, देयर आर मेनी स्टेट्स वेयर द इरिगेशन प्रोजेक्ट्स आर नीडेड
इट इज रिक्वायर्ड। तो ये ग्रुप को कोई लाइक नहीं करता एनीवे ये, बट ग्रुप अच्छे बातों के लिए ही लड़ता है, ऐसी बात नहीं। नेक्स्ट है कस्टोडियल राइट्स ग्रुप। ये ऐसे ग्रुप है जो कि जो लोग प्रिजनर्स हैं, जैसे कि वुमेन प्रिजनर्स के राइट्स, या फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन में जो डिटेनी है उसके राइट्स के लिए लड़ते रहते हैं और कोर्ट तक जाते हैं। नेक्स्ट जो एक्टिवेटर है वो है राइट ऑफ चाइल्ड ग्रुप्स। तो ये बेसिकली चिल्ड्रन के राइट्स लाइक चाइल्ड लेबर, लिटरेसी, राइट टू लिटरेसी, जुवेनाइल्स जो किशोर बच्चे होते हैं उनकी जुवेनाइल्स जब कस्टोडियल इंस्टीट्यूशन में रहते हैं उनके राइट्स के लिए ये लोग बेसिकली लड़ते रहते हैं। एंड जो सेक्स वर्कर्स हैं, जो महिलाएं हैं जो सेक्स वर्क में इन्वॉल्व है, उनके बच्चों का भी राइट तो कुछ है ना, तो उनके लिए भी ये सब फाइट करते रहते हैं। तो ये एक अच्छा ग्रुप लगता है। नेक्स्ट है पॉवर्टी राइट ग्रुप। ये ऐसा ग्रुप है जो बेसिकली ड्रॉट, फेमिन, अर्बन इम्पोरिविस्ट, तो ये बेसिकली ऐसा ग्रुप है जो कि इन सब मुद्दों को हाईलाइट करता है जो कि पॉवर्टी के कारण है। जैसे कि ड्रॉट, सूखा पड़ जाता है तो किसान का सब कुछ बर्बाद हो जाता है, किसान इतनी गरीबी में फंस जाता है कि वहां से निकलना बड़ा मुश्किल है। फेमिन अगेन, अकाल पड़ जाए। या फिर अर्बन इम्पोवरिस्ट, मतलब कि आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली, बॉम्बे और भी बड़े शहरों में, एक तरफ तो आपको फ्लोरिशिंग बिल्डिंग्स मिल जाएंगी, एक तरफ आपको पूरा वेल कंस्ट्रक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा, और दूसरी तरफ आपको दिखेगा स्लम। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सकूर बस्ती इन दिल्ली और धारावी इन मुंबई। तो ये सब लोग जो होते हैं इस चीज के लिए फाइट करते रहते हैं। तो ये दे आर ऑल्सो ए काइंड ऑफ एक्टिवेटर। नेक्स्ट ग्रुप इज इंडिजिनस पीपल राइट्स ग्रुप। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, और उसमें से 5वां और 6ठा जो शेड्यूल है वो बेसिकली इंडिजिनस पीपल्स के लिए बेसिकली ये शेड्यूल, उसमें सारी बातें हैं। इंडिजिनस पीपल क्या होता है, जैसे कि ट्राइब्स इंडिजिनस होते हैं, जो ट्राइबल एरिया है उन लोगों के राइट्स को बरकरार रखने के लिए। तो ये जो ग्रुप है बेसिकली इंडिजिनस पीपल्स के राइट्स को, जैसे ट्राइब्स वगैरह के राइट्स को हाईलाइट करता रहता है। जैसे उनका बेसिकली जंगल से रिलेटेड बहुत सारा राइट है, जंगल सब कुछ होता है, फॉरेस्ट सब कुछ होता है इंडिजिनस लोगों के लिए। एनीवे आगे बढ़ते हैं। वुमेन्स राइट ग्रुप, ये एक ऐसा ग्रुप होता है जो जेंडर इक्वालिटी की बात करता है, जो जेंडर बेस्ड वायलेंस को हाईलाइट करता है, वुमेन्स की हरासमेंट, रेप, डाउरी, मर्डर्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट जो ग्रुप है एक्टिवेटर ग्रुप, बार बेस्ड ग्रुप है। ये इंडियन जुडिशरी की ऑटोनॉमी और अकाउंटेबिलिटी के लिए मैटर्स को हाईलाइट करता रहता है। नेक्स्ट एक्टिवेटर ग्रुप है मीडिया ऑटोनॉमी ग्रुप। ये बेसिकली देखिए मास मीडिया जो है हमारे कंट्री की इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, किसी भी कंट्री की, लेकिन कई सारी कंट्रीज में नहीं है, उस पर स्टेट का रिप्रेशन रहता है। तो ये ठीक बात नहीं है। अगर मीडिया अगर जेन्युइनली या फिर कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज कर रही है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को बुरा नहीं लगना चाहिए। मीडिया की ऑटोनॉमी बहुत जरूरी है। इट्स लाइक 4th पिलर ऑफ द स्टेट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड अपना जुडिशरी के बाद 4था पिलर माना जाता है मीडिया को। मीडिया की ऑटोनॉमी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को इंफॉर्मेशन मिलता है मीडिया के थ्रू, सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं लोग, सरकार की वर्क के बारे में छपता है अखबारों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। तो मीडिया की ऑटोनॉमी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी ऑटोनॉमी पे कोई सवाल आता है तो ये ग्रुप एक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है असॉर्टेड इंडिविजुअल पिटिशनर्स। ये लोग इंडिविजुअल पिटिशनर्स होते हैं, लाइक फ्रीलांसिंग एक्टिविटी वगैरह करते हैं। नेक्स्ट है असॉर्टेड लॉयर बेस्ड ग्रुप। एक क्रिटिकली इन्फ्लुएंशियल लॉयर्स होते हैं, ये लोग ग्रुप में रहते हैं और एजिटेट करते हैं वेरियस कॉजेस को, कोई भी कॉज उठा लेते हैं वो, और ये बेसिकली लॉयर्स का ग्रुप है। ये यहाँ पे एक्टिवेटर खुद लॉयर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अप्रीहेंशंस ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। अब जान लेते हैं कि क्या अप्रीहेंशंस है जुडिशियल एक्टिविज्म की। तो देखिए कहीं ना कहीं फियर रहता है। एप्रीहेंशन मतलब कि जजेस के मन में क्या डर रहता है, एप्रीहेंशन रहता है। तो पहली जो डर रहती है जुडिशियल एक्टिविज्म जब वो करते हैं, तो पहला जो डर उनके मन में आता है वो है आइडियोलॉजिकल फियर। आइडियोलॉजिकल फियर का मतलब ये है, आइडियोलॉजिकल फियर में बेसिकली उनको ये लगता है कि क्या वो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव या फिर दूसरे ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस जो है उनके पावर को असर कर रही है, उनके पावर में इंटरफियर कर रही है। तो इनको कहना कि आइडियोलॉजिकली इनके दिमाग में चलता रहता है, एक डर सा बना रहता है।
नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे वो है एपिस्टेमिक फेयर। एपिस्टेमिक फेयर का मतलब ये है कि देखिए जजेस तो बेसिकली एक्सपर्ट होते हैं जुडिशियल मैटर्स में, लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म में वो लॉ मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो क्या उनको इतना नॉलेज है जितना कि एक इकोनॉमिस्ट लाइक मनमोहन सिंह को नॉलेज है इकोनॉमिक मैटर्स में? क्या इनको साइंस में इतना नॉलेज है जैसे कि डॉक्टर हर्षवर्धन को इतना नॉलेज है, या फिर एपीजे अब्दुल कलाम को जितना नॉलेज था? तो इतना नॉलेज इनको नहीं है, तो इनको एपिस्टेमिक फियर रहता है, और इस फियर को एपिस्टेमिक फियर कहते हैं। नेक्स्ट जो है मैनेजमेंट फियर। इनको हमेशा एक एक डर बना रहता है कि ऑलरेडी इनके पास इतना वर्कलोड होता है, ऑलरेडी कई सारे जो पेंडिंग केसेस में पड़े हुए हैं उन पे डिसीजन नहीं आ पा रहा है ड्यू टू द स्कार्सिटी एंड ड्यू टू द ओवर वर्कलोड, और इसमें ये लोग और वर्कलोड को ऐड कर रहे हैं बाय डूइंग जुडिशियल एक्टिविज्म। नेक्स्ट जो फियर रहता है इनके अंदर, वो जजेस के अंदर, वो रहता है लेजिटिमेशन फियर। कि कहीं ना कहीं इनको लगता है कि क्या हम लोग जो एक इंस्ट्रूमेंटल अथॉरिटी है, सिंबोलिज्म है अपने खुद का जुडिशरी का, आर नॉट दे कॉजिंग डिप्लीशन ऑफ देयर सिंबॉलिक एंड इंस्ट्रूमेंटल अथॉरिटी। ये बहुत बड़ी शाखा है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है अगर बात करें जुडिशरी तो क्या इस अपनी ही अथॉरिटी को डिप्लीट नहीं कर रहा है? ये एक मन में इनका डर रहता है। नेक्स्ट जो फियर रहता है वो डेमोक्रेटिक फियर रहता है वाइल डूइंग ए जुडिशियल एक्टिविज्म जजेस के मन में, दैट इज basically is a profusion of public interest litigation nurturing democracy or depleting its potential for the future। तो ये एक डेमोक्रेटिक फियर रहता है। बायोग्राफिक फियर, हर जज बाद में रिटायर होगा, सुपरन्यूएशन जाएगा तो उसकी बायोग्राफी के बारे में लोग क्या सोचेंगे कि यार यही वो जज है जिसने ओवर डू किया था लिटिगेशन को और अपना काम नहीं करता था, जुडिशियल एक्टिविज्म में पड़ा फंसा रहता था। तो दिस इज ऑल्सो एप्रीहेंशन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जुडिशियल रिस्ट्रेंट। तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, शुरू में ही बताया था, बैक जाओ और याद करो तो वहां पे मैंने बताया था कि जुडिशियल रिस्ट्रेंट क्या होता है। जुडिशियल रिस्ट्रेंट इज जस्ट एंटीथेसिस होता है जुडिशियल एक्टिविज्म का, जहाँ पे जो रोल होता है जजेस का वो स्क्रिप्चुअली लिमिटेड होता है। मतलब वो लोग दूसरे ऑर्गन्स में इंटरफेयर नहीं करते हैं, वो उनका जो मेन जॉब होता है वो लॉ को इंटरप्रेट करना होता है। एंड लॉ मेकिंग बिजनेस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए जुडिशियल रिस्ट्रेंट के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। एंड जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है वो लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव का काम है। नेक्स्ट स्लाइड में फर्स्ट पॉइंट है एजम्पशन ऑफ जुडिशियल रिस्ट्रेंट। क्या लोग सोचते हैं यूएसए में जुडिशियल रिस्ट्रेंट के बारे में? तो बहुत अच्छा सोचते हैं जुडिशियल रिस्ट्रेंट के बारे में। 6 बेसिकली इसमें डॉक्ट्रिन्स है, देख लेते हैं। यूएसए में ऐसा माना जाता है कि कोर्ट एक अनडेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, और सच बात है, कोर्ट को लोग थोड़ी ना चुनते हैं, इलेक्शन थोड़ी होता है जजेस का तो अपॉइंटमेंट होता है। तो अगर यार अनडेमोक्रेटिक ये है तो जुडिशियल एक्टिविज्म और लॉ मेकिंग प्रोसेस में आके क्यों ये अपने आप को इस मैटर में डालना चाहते हैं? क्यों जनता के अगेंस्ट काम कर रहे हैं? बिकॉज डेमोक्रेटिक कंट्री में जनता के द्वारा चुने गए लोग अगर लॉ बनाए तो वो ज्यादा अच्छा है, जनता के विल से बन रहा है। ये खुद क्यों पार्टिसिपेट करते हैं? ये पहला एजम्पशन है और ये सही है बिल्कुल। Next is the questionable origins of the great power of judicial review, a power not specifically granted by the Constitution। देखिए जुडिशियल रिव्यू जो है यूएसए में वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ग्रांटेड नहीं है, ये एक उनका खुद का निकाला गया, खुद जजेस ने इन्वेंट किया है जुडिशियल रिव्यू को। लेकिन हमारे कॉन्टेक्स्ट में ऐसा नहीं है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही जुडिशियल रिव्यू का पावर दिया गया है। कई सारे ऐसे प्रोविजन है जो जुडिशियल रिव्यू को प्रमोट करते हैं, जिससे जुडिशियल रिव्यू एक्चुअली निकल के आता है, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं है। तो जब जुडिशियल रिव्यू वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ने ही अलाउ नहीं किया है तो क्यों वहां पे क्यों नहीं जुडिशियल रिस्ट्रेंट होना चाहिए? नेक्स्ट है द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो बेसिकली जो फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है यूएसए में वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है। उस फॉर्म ऑफ गवर्नेंस में बेसिकली होता क्या है, जो ऑर्गन्स हैं वो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन पे काम करते हैं, उनके पावर्स अलग अलग हैं। जैसे कि एग्जीक्यूटिव सेपरेट है लेजिस्लेचर से, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन ऑफ पावर है,
एक जुडिशरी भी सेपरेशन ऑफ पावर में है, मतलब कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और जब जुडिशरी जुडिशियल एक्टिविज्म करती है वो तो फिर क्या क्या होता है, आपको पहले बताया, वो जो बाकी दो ऑर्गन्स हैं उनके काम को खुद करने लगती है। तो इट इज अगेंस्ट डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एंड दैट इज वाई जुडिशियल रिस्ट्रेंट, जहाँ पे कहा गया है कि जुडिशरी अपना ही काम करेगी, बाकी दो ऑर्गन्स के काम में नहीं घुसेगी, वो सही है। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म। अब देखिए अमेरिका जो है वो 50 ऐसे स्टेट्स का ग्रुप है, कैलिफोर्निया, ऐसे कई सारे स्टेट्स हैं, फ्लोरिडा, ऐसा मिल के स्टेट्स जो है वो फेडरेशन में उन्होंने एक नेशन बनाया हुआ है, और एज ए नेशन वो फेडरल नेशन है, फेडरलिज्म वहाँ पे है। एंड कहीं ना कहीं जुडिशरी अगर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का काम करने लगेगी तो फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो रह नहीं सकता है। जुडिशरी का काम ये है कि फेडरलिज्म को बना के रखे, बिगाड़ना उसका काम नहीं है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, द नॉन आइडियोलॉजिकल बट pragmatic assumption that since the court is dependent on the Congress for its jurisdiction and resources and dependent on the public acceptance for its effectiveness, it ought not to overstep its boundaries। ये भी एक assumption है जो कि जुडिशियल रिस्ट्रेंट के बारे में सही है। कहने का मतलब है कि देखिए जुडिशरी जो है उसका बहुत सारा पावर कांग्रेस से आता है यूएसए में। यूएसए में कांग्रेस का मतलब ये है कि जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, वहाँ पे यूएसए में उनके पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं। तो कांग्रेस से बहुत सारी पावर्स निकल के आती है जुडिशरी की। तो अगर डिपेंड करता है कोर्ट कांग्रेस के ऊपर तो कैसे कांग्रेस का काम करेगा वो, ये बात एक एजम्पशन सही है। एंड मोर ओवर अगर पब्लिक एक्सेप्टेंस की बात करें फॉर इट्स इफेक्टिवनेस, कहने का मतलब है कि जुडिशरी जो काम करेगी क्या उसको पब्लिक एक्सेप्ट करेगी? नहीं करेगी। जनता के द्वारा चुने गए लोग जो काम करेंगे उसको पब्लिक डेफिनेटली एक्सेप्ट करेगी, या फिर रिजेक्ट करना होगा तो अगले इलेक्शन में हटा देगी, कोई बात नहीं है। सो इट इज नॉट बेसिकली द ग्राउंड टू ओवरस्टेप इट्स बाउंड्रीज। बेसिकली ये सारे पॉइंट्स प्रूव करते हैं कि जुडिशरी को अपने लिमिट में रहना चाहिए, जुडिशियल रिस्ट्रेंट को फॉलो करना चाहिए। Next point is law being the process of reason and judgment and politics being concerned only with the power and influence। तो देखिए लॉ जो है, कानून जो है, जुडिशरी जो है वो रीजन और जजमेंट पे काम करती है। ये दोनों एस्पेक्ट है, रीजन और जजमेंट। जुडिशरी में अगर कोई मैटर जाता है तो नहीं गवाह को बुला के और चीजों को, फैक्ट्स को, सबूतों को रखा जाता है, तो रीजन ढूंढा जाता है, कोई भी जजमेंट होता है वहां पे। तो लेकिन पॉलिटिक्स में क्या है, सब कुछ पावर और इन्फ्लुएंस का खेल है। जो पावरफुल है, जो इन्फ्लुएंस कर सकता है जितने ज्यादा लोगों को, वो लॉ बनाएगा। तो ये अगेन जुडिशियल रिस्ट्रेंट को सही घोषित करता है कि भाई जुडिशरी को रिस्ट्रेंट मेंटेन करना चाहिए, बिकॉज उनका जो ग्राउंड है, उनका जो बेसिस है वो बेसिकली रीजन और जजमेंट पे है, तो क्यों उनको इन्फ्लुएंस और पावर में जाना है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ ऑब्जर्वेशन दिया है अपना जुडिशियल एक्टिविज्म के ऊपर। जब वो एक बेसिकली एक कोर्ट में केस आया था जिसको एक बेंच ने, जो सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने डील किया था और उसमें जजमेंट दिया था, ये बात है दिसंबर 2007 की। तो उसने कुछ ऑब्जर्व किया था रिगार्डिंग जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में, वो पॉइंट्स जानना बहुत जरूरी है। इन द नेम ऑफ, इसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन द नेम ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म जजेस कैन नॉट क्रॉस देयर लिमिट्स एंड ट्राई टू टेक ओवर फंक्शंस ऑफ अदर ऑर्गन्स, जैसे कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर। जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम पे जजेस को अपना लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे अगेन यही हाईलाइट किया जा रहा है कि भाई अपने लिमिट में रहो, आपकी जो जुडिक्शन है, जहाँ पे आपका एरिया है वहीं पे काम करो, दूसरे के जुडिक्शन में जाके काम करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो ऑब्जर्वेशन था सुप्रीम कोर्ट का, उसका ये था कि इन्होंने कहा कि जजेस जो है दे मस्ट हैव मॉडेस्टी एंड ह्यूमिलिटी एंड नॉट बिहेव लाइक इम्पेयर्स। कहने का मतलब है कि वो कोई सम्राट नहीं है, कोई राजा नहीं है कि राजा की तरह जो भी जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम पे आदेश देने लगे कि भाई चलो एग्जीक्यूटिव ये करो, चलो लेजिस्लेचर ये करो, ऐसा नहीं है। दे मस्ट हैव मॉडेस्टी एंड ह्यूमिलिटी इन देयर एक्शंस। नेक्स्ट जो ऑब्जर्वेशन है वो, जुडिशियल एक्टिविज्म मस्ट नॉट बिकम जुडिशियल एडवेंचरिज्म। देखिए जुडिशियल एक्टिविज्म कुछ हद तक ठीक भी है, जो ग्राउंड मैंने बताए थे आपको, कि जैसे कि लेजिस्लेचर अपना काम नहीं कर रही, एक्जीक्यूटिव अपना काम नहीं कर रही है, या फिर लेजिस्लेचर या एक्जीक्यूटिव कोर राइट्स का हनन कर रही है लोगों का, उस केस में जुडिशियल एक्टिविज्म होता है। एक सर्टेन लिमिट तक ठीक है,
बट ये एक्टिविज्म के नाम पे एडवेंचरिज्म नहीं होना चाहिए कि सारे मैटर्स को खुद ही लेके बैठ गए चिट्ठा सब कुछ, मैं ही कानून बनाऊंगा, सब कुछ बनेगा कानून, सारा कानून लॉ मेकिंग जो प्रोसेस है वो सब जुडिशरी में ही होगा। अरे भाई आपको आपका काम है जुडिशियल रिव्यू करना, आपका काम ये नहीं है कि मतलब आप कानून ही बनाने लगे। नेक्स्ट जो है ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट का, इसने कहा कि द कोर्ट मस्ट नॉट एम्बेरस एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। तो यहाँ पे क्लियरली बोला गया है कि भाई आप एम्बेरस मत कीजिए ऑर्गन्स को, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को, और कहीं ना कहीं ये रियलाइज करना चाहिए आपको कि उनमें एक्सपर्टीज है, बिकॉज दे आर साउंड, दे आर बेसिकली जनता के प्रॉब्लम्स को समझते हैं, जनता के बीच में जाते हैं नेता, और तब जाके फिर वहाँ पे लेजिस्लेशन आता है, कानून बनाते हैं किसी मैटर पे। उसमें भी उनके पास ब्यूरोक्रेसी है, जो कि एक्सपर्ट लोग बैठे होते हैं उनके साथ में, तो उनके पास एक्सपर्टीज है, आपके पास नहीं है, तो इस बात को आपको समझना चाहिए। ऐसा ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट का रहा। देन सुप्रीम कोर्ट का एक और ऑब्जर्वेशन है, इफ द लेजिस्लेचर और एक्सिक्यूटिव वाज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, इट वाज फॉर द पीपल टू करेक्ट द डिफेक्ट, नॉट द जुडिशरी सिस्टम टू करेक्ट द डिफेक्ट। देखिए हमारे जनता ऑल पावरफुल है, जनता जनार्दन है। जब चाहे सरकार गिरा देती है, जिसकी चाहे सरकार बना देती है, तो जनता बेसिकली काम देखती है लोगों का। अगर उसको अगर लगता है कि ठीक है लेजिस्लेचर ने और एक्सिक्यूटिव ने काम ठीक नहीं किया है, तो अगली बार सरकार गिरा देंगे। तो ये उनका डिसीजन है, आपका नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट जो ऑब्जर्वेशन था सुप्रीम कोर्ट का 2007 वाले केस में, वो ये था कि जुडिशरी हैज नीदर द एक्सपर्टीज नॉर द रिसोर्सेज टू परफॉर्म दीज फंक्शंस। तो जो फंक्शंस ऑफ लॉ मेकिंग है, कानून बनाने का जो प्रोसीजर है, उसमें ना तो जुडिशरी के पास एक्सपर्टीज है, वो लोग बेसिकली यू नो जुडिशियल सिस्टम के एक्सपर्ट हो सकते हैं, कानून को जांच करने के एक्सपर्ट हो सकते हैं, लेकिन कानून बनाने के एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं, ना ही उनके पास रिसोर्सेज हैं। तो क्यों इस पचड़े में पड़ना है? सो यही था जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में। इसमें अगर मेंस में आंसर लिखोगे तो मजा आ जाएगा, अगर ये कंटेंट को याद रख लो और मेरे एक्सप्लेनेशन को याद रख लो तो डेफिनेटली बहुत मजा आएगा। और मजे से करो यार, सब कुछ क्या टेंशन है ना, और मजे से ही पढ़ेंगे। ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म 28 चैप्टर ओवर। बस आपको रिवाइज करना है, नोट्स मैं लास्ट में दूंगा, तो नोट्स जरूर ले लेना और मजे करो। बाय, मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले जोश के साथ, अगले जोश नहीं, ज्यादा जोश के साथ। बाय बाय।